الرحمن الرحیم آج 26 جون 2026 ہے، 10 محرم ہے، اور آج پوری دنیا میں مسلمان معرکہ کربلا کی یاد میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے حوالے سے سوگ میں ہیں۔ لیکن آج پاکستانی کنٹرول جموں کشمیر میں بھی ایک معرکہ کربلا بپا ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے اس خطے میں پاکستان کی طرف سے بھیجا گیا ایک قصائی ڈاکٹر لیاقت، اس کی قیادت میں سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں سے اکثر کی گرفتاریاں جو ہیں وہ ضائع نہیں کی گئی۔ مختلف اطلاعات کے مطابق سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے راولہ کوٹ کے اندر، اور ان میں سے اکثر کی ڈیڈ باڈیاں جو ہیں وہ پولیس اور رینجرز کی تحویل میں۔ ایسے میں لوگوں کے اوپر الیگیشن لگا رہے ہیں اپنی اس قتل عام کو بچانے کے لیے، اپنے جرم کو چھپانے کے لیے، لوگوں کی بات سننے کے بجائے، لوگوں کے کیا کہتے ہیں اپنا مطالبات کو دیکھنے کے بجائے، ریاست مظفر آباد ہو یا اسلام آباد ہو، ایک اس قسم کا پروپیگنڈا ریاستی عوام کے خلاف کیا جا رہا ہے، جس میں سے پاکستان کے ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف، رانا ثناءاللہ، طارق فضل چودھری بالخصوص، اس کے دیگر جو حکومتی نمائندے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے طاہر اشرفی، ابصار عالم، جاوید چودھری اور اس قسم کے جو لوگ ہیں، غلیظ قسم کے کردار، یہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں پہ مختلف قسم کے الیگیشن لگا کے بدنصیبی سے اپنے لوگوں کی حقوق کی جدوجہد کرنے والے، اپنے لوگوں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے، اپنے لوگوں کے مستقبل کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے، میرٹ کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرنے والے شوکت نواز، میر سردار امان، خواجہ مہران، عمر نذیر کشمیری کے سروں کی قیمتیں لگا کے جائز جدوجہد کرنے والی عوامی ایکشن کمیٹی کو کالا دم قرار دے کر معرکہ کربلا بپا کیا ہوا۔ اور یہ پہلی حکومت دیکھی، یہ کہتے ہیں نا، وہ قصائی لیاقت ڈاکٹر لیاقت کہتا ہے کہ روڈیں کھلی ہیں اور کاروبار زندگی چل رہا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جائیں دیکھیں شاہراہ نیلم کیا کھلی ہے، حکومت نے 3 جگہ سے بند کی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ سب کے لیے جو وٹنس سٹیٹمنٹ ہے وہ سابق سینیٹر مشتاق صاحب کی ہے، جن سے میں 3 ہفتے سے رابطے میں تھا، اور پھر وہ راولہ کوٹ گئے 23 تاریخ کو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے رینجرز نے 5 گھنٹے حراست میں رکھا، اور ہمارے جو وہاں کے حکمران اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، وہ مسلم لیگ کے شاہ غلام قادر صاحب ہوں، راجہ فاروق حیدر صاحب ہوں، مسلم کانفرنس کے سردار عتیق صاحب ہوں، جمعیت علماء اسلام کے مفتی مولانا سعید یوسف صاحب ہوں، پیپلز پارٹی کے میاں وحید صاحب ہوں، فیصل راٹھور صاحب ہوں، یا ان کے جتنے بھی ہم نوائے، یہ جتنے بھی روایتی سیاستدان ہیں، یہ تمام کے تمام ایک پیج پہ، کچھ جن کے پاس حکومتی ذمہ داریاں ہیں وہ عوام کے قتل عام پہ کھل کے سامنے، اور جن کے پاس حکومتی ذمہ داریاں نہیں ہیں وہ خاموش ہوئے بیک پیج پہ اس چیز کا تماشا دیکھیں۔ اور کتنے شرم کی بات ہے غدار اول صدر قیوم کے بیٹے کے لیے کہ جو کہتا ہے میری قوم کے لوگوں کو پھانسیاں دو سرعام۔ ایسے میں جموں کشمیر کا کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کر رہا۔ ہم بار بار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ریاست کی معاشی ناکہ بندی کی ہوئی ہے، ریاست کے اندر بچوں کا دودھ، میڈیسن، سبزیاں، کھانے پینے کی ضرورت اشیاء کی چیزیں جانے کی اجازت نہیں، جس کی تصدیق سینیٹر مشتاق کی اسٹیٹمنٹ سے ہوتی ہے کہ مجھے داخل نہیں ہونے دیا گیا، 5 گھنٹے مجھے حراست میں رکھا، جب میں نے کہا میں نہیں جا رہا تو پھر مجھے چھوڑو، پھر خواتین نے میری مدد کی اور میں دھرنے میں پہنچا۔ ایسے میں کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان ہمارے دل جوئی کے لیے آ جاتا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کبھی بلاول بھٹو صاحب کا آ جاتا ہے، ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، کبھی کسی اور کا آ جاتا ہے، لیکن یہ تمام کے تمام لوگ اندر سے ان کی آج 20 دن سے یہ جو قتل عام جاری ہے، یہ جو مظالم جاری ہیں، چادر چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے، لوگوں کو گن پوائنٹ پہ اسٹیٹمنٹیں لے آئی ہیں ان سے، ان تمام کی پالیسی سے یہ لگتا ہے کہ ان کو خاموش رہنے کی یا صرف بیانات کی حد تک جو ہے وہ اجازت ہے، عملی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ ان کو جموں کشمیر کے لوگوں کی نہیں بلکہ جموں کشمیر کے وسائل، مدنیات، ماربل، ہربل، لکڑی، پانیوں کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جموں کشمیر کے لوگوں کا قتل عام کریں۔ اور اب یہ دیکھیں لوگوں، یاد رکھو نیلم سے لے کے مجھے نہیں پتا، مجھے بھی مار دیا جائے، اٹھا دیا جائے، کیونکہ ہم تو ان چیزوں کے لیے ہم وقت تیار ہیں، ہم اپنے وطن کے حقوق کے لیے، اپنے لوگوں کی زندگیوں کی آزادیوں کے لیے، اپنے لوگوں کے وسائل کی بازیابی کے لیے جدوجہد کریں۔ تو حقائق کو بیان کرنا ہمارے اوپر یہ فرض ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ضرورت زندگی جو ہے وہ وہاں کہاں ہے میڈیا، وہاں پہ کہاں ہے سوشل میڈیا، کہاں ہے نیٹ؟ میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے، انسانی حقوق کی کارکنوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، سیاسی رہنماؤں کو جانے کی اجازت نہیں جو غیر جانبدار ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ کسی انسان کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ ایسے میں معرکہ کربلا اگر کسی نے دیکھنا تو وہ جموں کشمیر میں، اور میں ساتھ یہ عرض کرنی چاہتا ہوں کہ اب اس عوام کے قتل کا سرٹیفکیٹ دینے والے
फॉरेन फोर्सेस को, रेंजर्स को, पीसी को, पुलिस को इस्लामाबाद से बुलाकर अपने लोगों की मुकम्मल करके निशानदेही करके लोगों की सरों की कीमतें रखने वाले, अवामी तारीख की आवाज़ को कुचलने वाले, चादर और चारदीवारी को पामाल करने वाले, लोगों को गन पॉइंट पे क्या कहते हैं उनकी लातलकियों की स्टेटमेंटें लेने वाले, जम्मू कश्मीर की आवाम को दहशतगर्द काला दम करार देने वाले, ये रवायती सियासतदान एक मरतबा फिर इलेक्शन में जाने की तैयारी कर और इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। मैं नीलम से लेकर भिंबर तक के लोगों से गुजारिश करूँगा, ये पहली तो बात यह कि ये इलेक्शन जमहूरियत की नफी करते हैं। एक्ट 74 के तहत होने वाले इलेक्शन जिसमें आपको आज़ादाना तौर पर आपकी राय देने का हक नहीं है, एक मुतनाज़ा खिता जिसके मुस्तकबिल का फैसला होना बाकी है, वो फैसला जम्मू कश्मीर के लोग करेंगे। उसमें एक ऐसा मुल्क जो हमें अपना वकील कहता है, अपने आप को हमारा वकील कहता है, और जिसकी ये क्लेम है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे, लेकिन जब आप नॉमिनेशन पेपर जमा करते हो तो आपको ये लिख के देना पड़ता है कि मेरा मुस्तकबिल जो पाकिस्तान के साथ होगा, मैं पाकिस्तान के साथ हलाक का हामी, जबकि हम पाकिस्तान के साथ हलाक के हामी नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान के मुखालिफ भी नहीं है। और जो बंदा ये कहते हैं जनाब कि मैंने तो मुस्तकबिल का फैसला भी करना है और मैंने तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में, आलमी क़वानीन की रोशनी में, अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी मैंने अपना फैसला करना है, तो उसको ये नायल करा देते हैं। इवन के चपरासी की नौकरी तक के लिए आपको लिख के देना पड़ता है। तो ये मुतनाज़ा इलेक्शन है, ये दानली ज़दा इलेक्शन है, ये डंडे के जोर पे इलेक्शन है। तो ऐसे में जैसा तैसा होता है आज तक, अब जो लोग आपके मुंतखब नुमाइंदे, आपके क्या कहते हैं हार जाने वाले कैंडिडेट जो इस वक्त कौम के साथ नहीं थे, जो दहशतगर्दी के बयानिए के साथ थे, जो रियासती ताकत के साथ थे, जो लोगों को कुचलने के पॉलिसी के साथ थे, लोगों वो फिर आपके साथ मजाक करने के लिए, आपको फूल बनाने के लिए, आपसे वोट मांगने के लिए आए। हम आज़ादी पसंद 1974 से इस काले कानून एक्ट 74 के खिलाफ जदोजहद करते आए हैं, माहिदा कराची के खिलाफ जदोजहद करते आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान को ऐसा से अलग करने के खिलाफ जदोजहद करते आए हैं। आज फिर इस इलेक्शन में लोगों आपने देख लिया कि हमारी बातें सही थी या गलत थी। ये जो आपसे वोट मांगने आए, आपके ईमान का तकाजा होना चाहिए, आपकी गैरत और शऊर का तकाजा होना चाहिए कि इन लोगों को वोट न दें, इन लोगों को दावतें न दें, इन लोगों को चाय न दें, इन लोगों को माले न डालें, इन लोगों का सोशल बाइकाट करें, इसलिए कि ये आपके बच्चों के कातिल हैं, ये आपके बच्चों को गिरफ्तार कराने के, उन पर तशद्दुद कराने के मुजरिम हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के मोए हैं, ये अपनी अवाम के कातिल, अपनी ख्वाहिशात की भूखे हैं। इसलिए इलेक्शन 2026 के बाइकाट का मैं ऐलान करता हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ, हमने 2021 में नीलम से भिंबर तक कैंपेन चलाई थी, लेकिन इस मरतबा हमें कैंपेन चलाने की जरूरत इसलिए नहीं कि रियासत जम्मू कश्मीर के इस खित्ते के बच्चे ने देख लिया कि ये मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले, ये आपकी ख्वाहिशात के कातिल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के दुश्मन, ये अपनी नफ्सियात के भूखे, ये एस्टेब्लिशमेंट के गद्दार दलाल, ये कभी भी आपके खैर ख्वाह नहीं हो सकते। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि उस भेजे गए कातिल डॉक्टर लियाकत को फिर वापस बुलाया जाए, उस चीफ सेक्रेटरी को गलत बयानी करने वाले को वापस बुलाया जाए, वहाँ भेजी गई रेंजर्स, पीसी, एसी को वापस बुलाया जाए, लोग जो कत्ल कर दिए गए, जो शहीद हुए, उनकी डेड बॉडी उनके लवाकिन को दी जाए, जो गिरफ्तार हैं उनको गैर मशरूत तैयार किया जाए, अवामी तारीख पे लगा काला दम का जो नोटिफिकेशन है उसको वापस लिया जाए, हमारे 4 नौजवानों की सरों की जो कीमतें लगाई उनको वापस लिया जाए, अवामी मुतालबात जो तस्लीम शुदा है उनको अप्लीमेंट किया जाए, और ये क्या कहते हैं रेटिंग ज़्यादा जो इलेक्शन होने जाए इनको मुलतवी किया जाए और साफ शफाफ इलेक्शन के इनकार को यकीनी बनाया जाए। बसूरत दिगर जम्मू कश्मीर के लोगों याद रखो, ये आपके कातिल आपके खैर ख्वाह नहीं हो सकते, ये आपके मुजरिम हैं, ये आपकी ख्वाहिशात के मुजरिम हैं, ये आपके मुस्तकबिल के मुजरिम हैं, ये आपकी नस्लों के दुश्मन हैं। और ये वोट तो आपसे लेते हैं, लेकिन इनकी गुलामी की डोरें कहीं और होती हैं। ये हुक्मरानी का दावा तो आपके ऊपर करते हैं, लेकिन इनकी जो अपनी कोई मन मानी, इनकी कोई अख्तियारात नहीं होते। मैं ऐसे जम्मू कश्मीर के गैरतमंदों से गुजारिश करता हूँ कि 2026 के आने वाले इलेक्शन का बाइकाट कीजिए। और अगर आज आपकी कत्ल होने के बाद, आपकी गिरफ्तारी होने के बाद, आपको तशद्दुद किए जाने के बाद, आपकी माशी नाकाबंदी की जाने के बाद, आपकी रोडी हुकूमत की तरफ से बंद करने और खाने के बाद, आपके नेट सर्विस गैप करने के बाद, आपको मुख्तलिफ किस्म की तकलीफों में मुब्तला करने के बाद, आपकी बच्चों की लाशें गिरने के बाद, अब भी अगर आप इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले इन कैंडिडेटों को वेलकम करते हैं तो शोर का तकाजा फिर दुनिया में पागल नहीं बल्कि बेगैरत कहेगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करनी चाहता हूँ कि ये इलेक्शन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का मुतबादल नहीं हो सकते, ये इलेक्शन एक आज़ादाना वोट का हक हुक्मरानी का मुतबादल नहीं हो सकते। ये इलेक्शन इस्लामाबाद की ख्वाहिशात पे अपने गुलामों को मुसल्लत करके हमारे ऊपर जुल्म कराने के लिए एक टोले को वहाँ पे बैठाने का जवाब फराहम करते हैं। लिहाजा ऐसे जम्मू कश्मीर के गैरतमंदों, बहादुर, गयूर लोगों, मेरी माओ, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवानों, बेटियों, आए ऐद करें कि ऐसे जम्मू कश्मीर के इस खित्ते पे मुसल्लत गुज़श्ता 78 साल से इस्लामाबाद के दलाल टोले का बाइकाट करें। इस्लामाबाद के इस दलाल टोले का जो आवाम का दुश्मन है, जो आपका, मेरी ख्वाहिशात का, हमारी नस्लों का दुश्मन है,
इनको वोट न दें, इनको माले न डालें, इनको वेलकम न करें, इनके जलसों का बाइकाट करें। लेकिन अब भी मैं ताज्जुब हूं, एक तरफ लाशें गिर रही हैं, हमारे लाखों लोग, मासूम बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, नौजवान, बच्चियां धरने पे हैं, और दूसरी तरफ से कुछ अकल से पैदल लोग इन नौटंकियों को, इन नौसबाजों को, इन फराडियों को, इन अपनी ख्वाहिशात के भूखों को, अवाम की ख्वाहिशात के कातलों को जो है माले डालें। क्या ये हमारा शऊर है? क्या दुनिया को जब ये पता चलेगा कि एक तरफ लाशें गिर गई थी, जब दुनिया को ये पता चलेगा कि दूसरी तरफ जिनकी लाशें गिरी थी उन्हीं में से कातलियों को कुछ लोग, कातलियों के मामलों को कुछ लोग, कातलियों के सहूलतकारों को कुछ लोग माले डाले थे और उनके साथ ऐदे वफा करे थे, तो बताइए शऊर का तकाजा कि दुनिया में पागल नहीं कहेगी? मैं सलाम पेश करता हूँ रियासत जम्मू कश्मीर के अबोर्ड, यूके में, कनाडा में, बरतानिया में, यूरोप के ममालिक में जो लोग इस वक्त सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मैं पाकिस्तान के भी उन लोगों को, उन सियासतदानों को, उन मजहबी उलमा को सलाम पेश करता हूँ जो जम्मू कश्मीर की इस मुश्किल वक्त में रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की हक की आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं। लेकिन लानत है उन लोगों के लिए जो हक़ाइक़ जाने के बगैर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को गद्दारी के फतवे दे रहे, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को इंडियन एजेंट होने का ये हमारी परमन तारीख को इंडियन साजिश करार दे। वो पाकिस्तान के मिनिस्टर हों, वो पाकिस्तान के साफ़ी हों, वो पाकिस्तान के किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते क्यों न हो, हम गुजारिश करते हैं, हम दावत देते हैं पाकिस्तान के साफियों को, सियासतदानों को, समाजी कारकुनों को, वकला को, आप जाइए रावलाकोट, आप जाइए नीलम, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, बिम्बर, बाग, हवेली, देखिए कि वहाँ लोग इस वक्त किस मुज़ालम का शिकार हैं। जाइए और वहाँ देखिए कि लोगों के जिंदगियों को अजीब किया गया है। जाइए और वहाँ देखिए कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, वहाँ किसी को भी गोली मारकर लाश को गायब कर दिया जाता है। गुज़श्ता 6 जून से ये सिलसिला जारी है, आज 20 दिन हो गए। ऐसे में ये इलेक्शन करने जाएं, ऐसे में ये वहां पे लोगों से वोट मांगने जाएं, ऐसे में ये लोगों इनसे पूछो इनसे कि जब हमारे सरों पे मौत मंडलाई थी, तो हमारी बुलाई हुई FCPC रेंजर्स हमारे बच्चों का कत्लेआम कर रही थी, उस वक्त तुम कहाँ थे? उस वक्त तुम इनके माइती क्यों थे? उस वक्त तुम इनके आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते थे? हम किसी के दुश्मन नहीं है, हम पाकिस्तान के खैरख्वाह हैं, हम पाकिस्तान के दावों के दुश्मन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार से हम ये पूछने का हक रखते हैं कि आपको शर्म नहीं आती? एक तरफ आप अपने आप को हमारा वकील कहते हो, दूसरी तरफ हमारे बच्चों की लाशें गिराते हो, जायज़ हकूक मांगने पे हमें दहशतगर्द कहते हो, तस्लीम शुदा मुतालबात की डिमांड करने पे हमें इंडियन एजेंट कहते हो। मैं आप तमाम लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ, जम्मू कश्मीर के गैरतमंदों और बहादुरों से, इस डोंग इलेक्शन का बाइकाट करोगे। और याद रखो, फतह आपकी होगी, फतह जम्मू कश्मीर के लोगों आपकी होगी, फतह इस्लामी तारीख की होगी। और ये मकफात अमल शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के अवाम को काला दम करार देने वाले लतीफ़ अकबर को अदालत ने काला दम करार दे दिया है। इंशाअल्लाह दामन सब्र रखो लोगों, अल्लाह हमारी मदद करेगा। हम अपने हकूक़ के लिए जदोजहद करें। हम 78 साल से पिसे हुए लोग हैं, हम इस्तिसाल का शिकार लोग हैं। आज अगर हम सब यकजा होकर अपने हक के लिए जदोजहद करें तो इनके गद्दार कहने से, इनके हमें कश्मीरी न होना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।